वर्क एंड टाइम। सो आज के लेक्चर में हम वर्क एंड टाइम ये मैथमेटिक्स का चैप्टर पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट है आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। So this is the first problem. So in this problem, A and B can do a work in 12 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days. If A, B, C work together, they will complete in work how many days? So A और B, A plus B, ये 12 दिन में काम करते हैं। B और C ये 15 दिन में काम करते हैं और C प्लस A ये 20 दिन में काम करते हैं। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कितना आएगा इसका 60। सो इफ यू डिवाइड, दिस इज आवर टोटल यूनिट ऑफ वर्क। इफ यू डिवाइड this 12 by 60, you will get 5 here, which is your per unit work of A and B. So per unit work of B and C is 4, per unit work of C and A is 3. So total per unit of work in a day is 12. So here A plus B plus C 2, which is cancelled out here by 6. So A plus B plus C per unit work in a day is 6. So total unit work is 60, per unit work is 6. So they complete the work in 10 days. So this is the correct option. A can do a piece of work in 12 days. B can do it in 18 days. They work together for 2 days and then leaves. How long will B take to finish the remaining work? A 12 दिन में काम पूरा करता है, B वही काम 18 दिन में पूरा करता है। तो टोटल यूनिट वर्क निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे जो कि 36 है। So per unit work of A is 3, per unit work of B is 2. So total per unit work of A plus B is 5. So the work done by A plus B in 2 days is equal to 5 into 2, that is equal to 10 unit. So they have completed 10 unit. So remaining work is equal to, which is done by B, which is equal to 36 minus 10 is equal to 26. So which is done by B, so per unit work of B is 2. So if you divide the 2 here, the work done by B, the remaining work done by B is equal to 30, can be done in 13 days. So 13 days is the correct answer.
So 3 men or 4 women can plow a field in 43 days. How long will 7 men and 5 women take to plow it? तो 3 men और 4 वुमन एक फील्ड को 43 डेज में प्लो करते हैं, तो उनको 7 men और 5 वुमन को कितने दिन लगेंगे पूरा प्लो करने में? सो 3 men is equal to 4 women. So men is equal to 4 unit work per day and woman is equal to 3 unit per day. Total unit of work is equal to 43 into 3 into 4. This is total unit of work. So 7 men plus 5 women is equal to 7 into men is 4 unit plus 5 into woman is 3 unit, equal to 28 plus 43, 15, which is equal to 30 plus 13, 43. So 7 men plus 5 women will take total unit divided by 7 men plus 5 women unit work done by them is equal to 43 into 3 into 4 divided by 43. This will be cancelled out, so is equal to 12. So 12 days is the answer. A can complete a work in 6 days. B can complete the work in 12 days. They complete the work together. They work together and complete it. The portion of work done by A is. So if you calculate the LCM, the LCM is 12. The unit of work done by A is 2 units. The per unit work by A is 1 unit. The total unit of work done by AB is 3 units. तो 3 यूनिट वह एक दिन में 3 यूनिट वर्क वो एक दिन में करती है, तो 12 यूनिट वर्क वो 4 दिन में करेंगे। ठीक है, 4 यूनिट 4 दिन में करेंगे। सो A and B complete the work in 4 days. So the portion of work done by A is equal to 2 by 3 is the answer according to me. Total days divided by, so this you can found by here, but total unit is 12. The work done by them is 6, 2. So this is the correct answer. Jyoti can do 3 by 4th work done in 12 days. Mala is 12 is equal to 12 efficient as Jyoti. In how many days will Mala finish? So Mala 2 unit पर डे काम करती है, ज्योति 1 यूनिट पर डे काम करती है। सो ज्योति 3/4 वर्क 12 दिन में करेंगी। सो 1/4 वर्क वो 4 दिन में करेंगी। ज्योति पूरा काम करने के लिए 16 दिन लगाती है। तो ज्योति एक दिन में 1 यूनिट काम करेंगी, तो 16 दिन में 16 यूनिट काम करेंगी। माला 2 यूनिट
2 यूनिट पर डे काम करती है, 2 यूनिट पर डे काम करती है। टोटल यूनिट 16 है, तो एक दिन में वो कितना काम करेंगे, पूरा काम वो कितने दिन में खत्म करेंगे? 8 डेज में। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। 5 person can prepare an admission list in 8 days, working 7 hours a day. If a 2 person join them so as to complete the work in 4 days, they need to work per day for. So 5 person एडमिशन लिस्ट प्रिपेयर करती है 8 डेज में, working 7 hours a day. So this is their capacity of working. So total capacity of working is same in all condition, which is equal to, if 2 person join them, मतलब कितने हो जाएंगे, वो 7 person हो जाएंगे, is equal to complete the work in 4 days, जो कि 4 days में करना है, तो उन्हें कितना पर डे वर्क करेंगे, वो पर डे वर्क एक्स रहेगा हमारा। तो ये कैंसिल हो जाएगा 7 7 से, 4 2 जा, जो कि 10 डेज में काम करेंगे, 10 आवर्स में काम करेंगे। A daily wages labor was engaged for a certain number of days. डेली वेजेस लेबर है जो कि 5750 में काम करता है, बट बीइंग absent on some of this day he was paid only 5000, बट वो कुछ दिन absent रहता है तो उसे 5000 मिलते हैं। What was his maximum daily possible daily wages? So 7050 रुपये उसके absent के लगेंगे और उसे मिलते हैं कमाई करने के लिए 5000, जो कि उसके वर्किंग डेज रहेंगे। तो ये कैंसिल करेंगे हम, तो ये होगा 3 जा, ये होगा 20 या 20/3। तो टोटल जो डेज रहेंगे इज इक्वल टू absent प्लस वर्किंग डेज रहेंगे। तो कितना आएगा, 3 + 20 विच इज इक्वल टू 23। सो 5750 उसे उसके डेली वेजेस रहेंगे, मैक्सिमम डेली वेजेस रहेंगे। तो जब हम कैंसिल इसको करेंगे तो यहाँ 23 2 जा, 23 5 जा 2 जा, तो ये इसका आएगा आंसर। A can do a certain work in the same time in which B and C together can do it. A काम को उतना ही वक्त लेता है जितना कि B और C साथ मिला के। A and B together could do it in 10 days. A B together in 10 दिन में काम करते हैं और C उस काम को 50 दिन में करता है। तो B अलोन कितने दिन में करेगा, ये पूछा है। सपोज यहाँ हम टोटल यूनिट वर्क ये लेते हैं 50, ये जो कि टोटल यूनिट ऑफ वर्क है। तो पर यूनिट वर्क कितना रहेगा, पर यूनिट वर्क डन बाय ए बी इज इक्वल टू 5, पर यूनिट वर्क डन बाय सी इज 1। तो जब हम इसे ऐड करेंगे ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 यूनिट, पर सी का हमारे पास है 1 यूनिट, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 5 यूनिट, और सी यहाँ 1 डालेंगे तो ए माइनस बी इज इक्वल टू 1 यूनिट, तो ए माइनस बी इक्वल टू 1 यूनिट। तो दो इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, बी भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्वाइस ए इज इक्वल टू 6 यूनिट, तो ए इक्वल टू 3 यूनिट। 3 यूनिट ए आया,
तो बी कितना आएगा, बी हमारा आएगा, ये इक्वेशन में पुट करेंगे, बी हमारा 2 यूनिट आएगा। तो टोटल यूनिट कितना है हमारा, टोटल यूनिट है 50, टोटल यूनिट है 50, बी का 2 यूनिट वर्क है। So how many days required by D to complete the work? So 50 divided by 2 which is equal to 25 days। 25 days में 20 पूरा काम अकेला करेगा, तो 25 is the correct answer। A can do a piece of work in 12 days, B alone can do it in 15 days, while with the help of C they can finish it in 5 days। uh, if they are paid rupees 960 for whole work, how much how much money they get, a को कितना पैसा मिलेगा। तो यहाँ जो कि टाइम रहेगा, जितना वह वक्त ज़्यादा काम करेगा, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शन रहेगा उसकी इफिशिएंसी से। ठीक है, तो A इज टू बी इज टू A प्लस बी प्लस सी। ए कितने दिन में काम कर रहा है, ए काम कर रहा 12 दिन में। बी कितने दिन में काम कर रहा है, बी कर रहा 15 दिन में। ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों मिला कितने दिन में काम कर रहे हैं, जो तीनों मिला के 15 दिन में काम करेंगे। इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, जो कि टोटल यूनिट वर्क रहेगा, टोटल यूनिट वर्क रहेगा हमारा 60। ठीक है, तो ए कितने दिन में काम करेगा, सॉरी ये टोटल यूनिट वर्क है, तो इसकी इफिशिएंसी निकालेंगे हम। इफिशिएंसी कितनी रहेंगी, ये टोटल यूनिट वर्क है उसका, तो ए की इफिशिएंसी क्या रहेंगी, ए की जो इफिशिएंसी रहेंगी करने की वो रहेंगी 5 यूनिट। बी की इफिशिएंसी कितनी रहेंगी, बी की इफिशिएंसी रहेंगी 4 यूनिट। और ए प्लस बी प्लस सी की यूनिट कितनी रहेंगी, 12 यूनिट। हमें ए की निकालना है इधर, तो 12 यूनिट, ये हमारा 12 यूनिट हमारी इफिशिएंसी है, तो इफिशिएंसी के हिसाब से हमें पैसे मिलते हैं। तो ये 12 यूनिट इज इक्वल टू 960 है, क्योंकि हमें 960 टोटल पैसे मिल रहे हैं, तो हमें ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा, ये रहेगा 12 यूनिट इज इक्वल टू 8। हमें 5 यूनिट के लिए निकालना है, तो 400 रुपीज़ हमारा यहाँ आंसर रहेगा। 2 women and 1 woman together can complete a piece of work in 14 days। दो महिला और दो आदमी और एक महिला 14 दिन में काम करते हैं, while 4 women and 2 men together can do it in 8 days। If man gets 600 per day, how much money should a woman get in a day। सो यहाँ हमें ये पता चल रहा कि टोटल जो कैपेसिटी ऑफ वर्क रहेंगी, टोटल कैपेसिटी ऑफ वर्क वो सेम रहेंगी, मतलब 2 वुमेन प्लस 1 वुमन, ये जो रहेगा विच इज इक्वल टू, ये दोनों रहेगा 14 दिन में काम करेंगे, विच इज इक्वल टू 4 वुमन प्लस 2 मेन, जो कि 8 दिन में काम करेंगे। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 7 आएगा, यहाँ 4 आएगा, तो 14 मेन प्लस 7 वुमन इज इक्वल टू 16 वुमन प्लस 8 मेन। तो यहाँ जब हम आंसर निकाल देंगे, तो 14 तो यहाँ 6 मेन आएगा, और यहाँ 9 वुमन आएगा, मेन इज इक्वल टू 3 आएगा, वुमन इज इक्वल टू 2 आएगा। तो मेन की इफिशिएंसी है 3, जो कि मेन की इफिशिएंसी है, तो उसकी इफिशिएंसी के बाद से उसे पैसे मिलेंगे। तो मेन को 600 रुपये पर दिन मिल रहे हैं।
जो कि 200 रुपये। तो उमन को एक दिन में कितना मिलेगा? उमन को मिलेगा 400 रुपये। तो ये 400 रुपये आंसर है। टू वुमन्स टू men and 3 women together or 4 men together can complete a piece of work in 20 days। यहाँ टोटल कैपेसिटी ऑफ वर्क जो है वो सेम है, तो इसीलिए 2 men प्लस 3 women इज इक्वल टू 4 men। 3 men प्लस 3 women कंप्लीट द सेम वर्क। तो सेम वर्क हमें निकालना है कितना कितना रहेगा करके, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, ये हमें निकालना है। सो इधर 3 women इक्वल टू 2 men आएगा। तो मेन की इफिशिएंसी जो रहेंगी टू पर यूनिट वर्क पर जो रहेगा वो रहेगा 3 और वुमन की रहेंगी 2। तो हमें निकालना है टोटल यूनिट ऑफ वर्क, पहले हम निकालेंगे। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना रहेगा हमारा? 4 men इंटू 3 विच इज इंटू 20। ये हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क रहेगा। ये टोटल यूनिट ऑफ वर्क रहेगा। और हमें निकालना है 3 men, और मेन की एफिशिएंसी 3, वुमन की है 2 यूनिट पर वर्क, विच इज इक्वल टू 5 इंटू 3। तो हमें 3 men और 3 वुमन कितने दिन में काम करेंगे वो निकालना है। तो टोटल यूनिट डिवाइड बाय जो 3 men और 3 वुमन की पर यूनिट वर्क कितना है? 15 यूनिट पर वर्क है, पर यूनिट वर्क। और टोटल पर यूनिट वर्क इतना है हमारा। ये कैंसल आउट हो जाएगा यहाँ 4 से, यहाँ 3 से, 3 से कैंसल आउट हो जाएगा 16। तो 16 डेज लगेंगे 3 men और 3 वुमन को पूरा काम करने में। तो आंसर है A is twice as good as B. Together they finish the work in 60 days. Number of days alone to finish the work। इफिशिएंसी में ए और बी की इफिशिएंसी निकाले तो बी की 2 है, ए की 1 है। तो टाइम में क्या रहेगा इसका? 1:3, 1:2। दे फिनिश टुगेदर। टुगेदर मीन्स 3 यूनिट। 3 यूनिट में they finish your work in 16 days। सो वो 16 दिन में पूरा काम करते हैं। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना रहेगा? टोटल यूनिट ऑफ रहेगा 16 इंटू 3। तो हमें ए के लिए निकालना है। ए पर यूनिट वर्क कितना है? 2। तो 16 इंटू 3 डिवाइड बाय 2, नंबर ऑफ डे टेकन बाय ए अलोन टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 8 विच इज इक्वल टू 24। तो 24 इसका करेक्ट आंसर है। या हमें सीधा पता चल रहा कि ए की इफिशिएंसी डबल है बी से। ठीक है, तो जो जो नंबर रहेगा वो 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो या हम देख सकते हैं तो पहले ही कट जाता। तो आंसर ये रह सकता, ये रह सकता या ये रह सकता। और अभी हमें देखना है कि टोटल इफिशिएंसी कितनी हो रही, जो कि हो रही 3। तो 3 से आंसर आने वाला यही है। तो आंसर हम डायरेक्ट ये भी मार सकते हैं। इफ़ यू आर गुड इन मैथ्स देन इजीली सॉल्व। सो ए जो है वो 21 दिन में काम कर रहा, बी जो है जो 40% मोर इफिशिएंट देन ए है। सो बी इज, ये 40% को हम कन्वर्ट करेंगे ए फ्रैक्शन में, जो कि आएगा 7/5 ऑफ ए। तो इफिशिएंसी के हिसाब से ए इज टू बी का कितना रहेगा? ए का 7 रहेगा, ए का 5 रहेगा, बी का रहेगा 7।
the number of day required for B to finish the framework. तो TA क्या रहेगा, जो कि अपोजिट रहेगा 7:5। तो A 7 दिन में काम कर रहा, ये मल्टीप्लाई फैक्टर 3 है, यहाँ भी 3 मल्टीप्लाई फैक्टर रहेंगे, तो 15 दिन में वो काम कंप्लीट करेंगे। इसका आंसर है A टेक ट्वाइस एज मच टाइम एज B। इफिशिएंसी देखा जाए A और B की, एंड C थ्राइस एज मच एज C, तो इसकी A टेक ट्वाइस मच एज B। सपोज B को X रखे एंड थ्राइस एज मच एज C, A को X रखे तो B का कितना आएगा, B का इतना आएगा, C का कितना आएगा, X/3 आएगा। ये इफिशिएंसी है इसकी वाली। तो 1:2 1:3 ये इसकी इफिशिएंसी है। तो हम इसे कैंसिल आउट करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे, दे टुगेदर कंप्लीट द वर्क इन 1 डे। तो यहाँ आएगा 6 आएगा, यहाँ आएगा हमारा 3, यहाँ आएगा हमारा 2। ये इसकी इफिशिएंसी हो गई। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना होगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क हो गया 6 + 3 + 2। विच इज इक्वल टू 11। 11 आया ए टोटल, तो ए अलोन कंप्लीट द वर्क नंबर 6। इसको हम ऐसे ना करते, तो डायरेक्ट लेते हैं, तो टोटल ये इसकी वाली इफिशिएंसी होगी, इफिशिएंसी होगी। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना रहेगा, टोटल यूनिट ऑफ वर्क। सो ए करता एक दिन में 1 यूनिट, बी कितना करता एक दिन में हाफ यूनिट, सी करता 1/3 यूनिट। तो टोटल यूनिट इन 1 डे कितना आएगा, तो 1 + 1/2 + 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 6 करेंगे फ्रॉम बोथ साइड्स, आएगा 6 + 3 + 2 डिवाइड बाय 6, ये 11/6। ये हमारा टोटल यूनिट ऑफ वर्क इन अ डे है। एक दिन में इतना काम करेगा वो। तो ए कितना करेगा, ए करेगा एक दिन में काम A equal to thrice of C, A is equal to twice of B. So A is to B, A equal to, इसको प्रोपोर्शन में लेंगे तो A बीच में आएगा, is equal to thrice C is equal to twice B. So if you make a 6 on both sides, तो C कितना आएगा, 2 आएगा, A 6 आएगा, 6 आएगा, A 3 आएगा। तो A कितना है, 6 दिन में काम करेंगे, तो टोटल 6 दिन में काम करेंगे। इसका आंसर 6 है। अभी कैसा है वो दिखा था। यहाँ दिया हुआ है A टेक ट्वाइस एज मच एज टाइम एज B एंड थ्राइस एज मच टाइम एज C। A 2 गुना काम करता है B से, टाइम की इसमें होगा, टाइम की इसमें, और A 3 गुना काम करता है C से। तो A इज इक्वल टू थ्राइस C इज इक्वल टू ट्वाइस B। ये टाइम की इसमें है, ठीक है। तो हम इसको डिवाइडेड बाय करेंगे 6 से, तो B डिवाइडेड बाय आएगा हमारा 3, A डिवाइडेड बाय हमारा आएगा 6, और
3 डिवाइडेड बाय आएगा हमारा 2, 80 ये है। तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर ए इज 6 days, ये है इसका आंसर। तो कंसेप्चुअल था प्रॉब्लम। A plus A, B, C are employed together to do a piece of work for rupees 5,290. A and B together are supposed to do in 19 by 20 of the work, and B and C together 8 by C of 8 by 23 of the work। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क हमने सपोज यहाँ दोनों में हमें सेम दिख रहा है, तो टोटल यूनिट वर्क हमने 23 यूनिट पकड़े। ए और बी कितना ले रहा, ए और बी ले रहा 19 यूनिट। बी और सी कितना ले रहा, बी और सी ले रहा 8 यूनिट। सो टोटल यूनिट ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो रहा, ये हो रहा 27। बी भी डबल है, तो ये कितना है हमारे पास, ये है टोटल यूनिट 23 प्लस बी प्लस 27। तो बी का कितना पर यूनिट वर्क आ रहा, बी का आ रहा पर यूनिट वर्क 4, बी का 4 आ रहा है। तो ए का कितना आएगा, ए का आएगा 15, ए का 15 आएगा, बी का 4 आ रहा, सी का कितना आएगा 4। तो ए का 15 आ रहा, बी का 4 आ रहा और सी का भी 4 आ रहा। ये पर यूनिट वर्क है, पर यूनिट वर्क है उनका, ये उनकी इफिशिएंसी होगी। तो हमें पता है कि उनकी इफिशिएंसी के हिसाब से उन्हें पैसा मिलता है। तो 23 का मतलब 5290, तो 1 का मतलब 230 हो जाएगा, क्योंकि 1 का मतलब 230। तो हमें निकालना है ए के लिए, ए का इसमें 15 इंटू 23। तो हमें चेक करना है, मल्टीप्लाई भी कर सकते। 15 3 ज़ा मतलब 15 इंटू 23 30, 15 3 ज़ा 45, so 5 here, 4 here, 15 2 ज़ा 30, 34। So 3040, this is the answer of this question according to me. So thank you for watching this video. If you like this video, please subscribe this channel and comment on this, and I will be uploading next chapter in the next day. So thank you.